We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good afternoon all and welcome in our next lecture series. The subject is Power System 1. The code is 3140914. Myself Puneet Sampura and shall continue with our last topic, right? So let us just recall that what we did, right? So in our first lecture, we started with our chapter 6 transmission line parameters, right? And in this chapter we discuss that what is line inductance, then we derive the expression of flux linkage due to single current carrying conductor, right? And then due to internal as well as external flux, right? Then we derive the expression of inductance of single phase 2 wire line, right? Now in next second lecture, right, we yesterday we completed the inductance of 3 phase overhead line, and we derive mathematical expression for 2 cases. The first one is for symmetrical spacing, right? The first one is for symmetrical spacing, and we derive the formula LA, that is the line inductance, which is equal to 10 raised to power minus 7.5 plus 2 of ln d upon Henry per meter. And for unsymmetrical spacing, we use the concept of transposition, right? Where one phase, यहाँ पे एक कंडक्टर 1 मीटर के डिस्टेंस पे अपने अपने पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, राइट? Then derive the equation of psi A flux linkage and LA, right? These 3 are the equation. Then finally we derive the inductance of each line, right? And the final we get the solution is 0.5 plus 2 times of ln 3 cube d1 d2 d3 divided by r into 10 to minus 7. So friends, in today's lecture we shall start with the basic concept of self GMD and mutual GMD, right? So in our lecture 3 we understand the basic concept of self and mutual GMD, and then later on we will start with numerical practice of inductance calculation. Okay, so what is the concept of self GMD, which is also known as GMR, geometric mean radius of conductor? Self GMD, what is GMD? Geometric mean distance, right? So till now we derive the inductance expression, that is equal to 2 into 10 to minus 7 half 1 by 4 plus log e d upon r. इसको अगर इन मल्टीपल करेंगे तो सेपरेटली 2 into 10 to minus 7 into 1 by 4 plus 2 into 10 to minus 7 log e d upon r. So there are 2 separate parts. One is like here you can see that this one is constant part, other one is some component d and r, right? The first portion is 2 into 10 to minus 7 into 1 by 4. Where it comes, this first expression is the inductance expression. Inductance due to flux within the solid conductor. When we start our chapter, we assume that our conductor is solid conductor, right? And we take some cross sectional area of that solid conductor. So ये जो portion है, ये क्या है? ये inductance है, right? Inductance किसकी वजह से? जो कंडक्टर के सॉलिड कंडक्टर के इनर पार्ट में जो फ्लक्स था, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था, उसकी वजह से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था, ये वो पोर्शन है, राइट? जनरली हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, बट कैसे एलिमिनेट करेंगे? सो फॉर एलिमिनेशन पर्पस if we replace our solid conductor
विथ अ होलो कंडक्टर, राइट। तो अगर हम सॉलिड कंडक्टर को किसी होलो कंडक्टर से रिप्लेस कर दें तो होगा क्या कि जो करंट है उस होलो कंडक्टर के अंदर वो पूरी पूरी कहाँ कन्फाइन होगी, उसके सरफेस पे कन्फाइन होगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसके कंडक्टर के सेंटर से लेके सरफेस तक का जो फ्लक्स लिंकेज है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीच में होलो पोर्शन है, कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, पूरा पूरा करंट तुम्हारा सरफेस पे आ जाएगा। तो इंटरनल जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट पोर्शन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, सेल्फ जीएमडी मिलेगा जिसको बोलते हैं जीएमआर, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, आर डैश, जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। R dash is equal to 0.7788 into radius of conductor, which is also known as ds. What is ds? It's self GMD, right? जिसको बोलते हैं GMR. ये GMR किसके ऊपर डिपेंड करेगा? This GMR of conductor depends upon the size and shape of the conductor. कौन सी साइज का है और कौन सा शेप है, होलो कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, उसको डिपेंड करेगा। बट जो कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है एक कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेसिंग, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट, राइट। सो दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी। म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है, म्यूचुअल मतलब जहां पे मोर देन वन कंडक्टर्स हो, मतलब टू कंडक्टर्स की बात हो रही है। अब इसमें अलग अलग केस है, राइट। सो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर कंडक्टर इज नोन एज म्यूचुअल जीएमडी, राइट। अब सपोज तुम्हारे पास दो कंडक्टर है, तो म्यूचुअल जीएमडी बिटवीन टू कंडक्टर इज डीएम, डीएम इज म्यूचुअल, राइट। लेट्स से द स्पेसिंग बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी इज डी, सो व्हाट इज म्यूचुअल जीएमडी, इट्स डी, राइट। मान लो एक सिंगल सर्किट थ्री फेज लाइन है, जहां पे लास्ट टाइम हमने केस किया था इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज लाइन का, राइट, सिंगल फेज थ्री वायर। तो वहां पे क्या था, तीनों कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी थी, D1, D2, D3, राइट। अगर ये स्पेसिंग इक्वल ना हो, राइट, अगर ये स्पेसिंग इक्वल ना हो, जैसे हमने ये लास्ट टाइम देखा था, D1, D2, D3 इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज ओवरहेड लाइन, राइट। तीनों की स्पेसिंग कितनी है, D1, D2, D3। अगर ये तीनों स्पेसिंग इक्वल ना हो, राइट, तो तुम्हारा जो म्यूचुअल जो जीएमडी है, राइट, डीएम जिसको बोलते हैं डीएम, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 ऑफ D1, D2 एंड D3, राइट। अब सपोज कोई भी केस ऐसा आ जाए कि तुम्हारे पास एक थ्री फेज डबल सर्किट लाइन है, मिरर रिफ्लेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान समझिएगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। मोस्टली न्यूमेरिकल इस टाइप के ही होते हैं जहाँ पे हम थ्री फेज डबल सर्किट लाइन का यूज करेंगे। तो हम सेल्फ जीएमडी कैसे काउंट करेंगे और म्यूचुअल जीएमडी कैसे काउंट करेंगे। देखो तीन केस है, तीन कंडक्टर है ए बी सी, एक सर्किट हुआ, इसका मिरर रिप्लिकेशन ए डैश बी डैश सी डैश, राइट। तो हमारे पास एक डबल सर्किट लाइन है, सर्किट है थ्री फेज। अब हमें इसमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे इसमें डीएम की वैल्यू चाहिए होगी और डीएस की वैल्यू चाहिए होगी, राइट। डीएस सेल्फ जीएमडी जिसको बोलते हैं जीएमआर, राइट। सबसे पहले आर डैश, उसका जो सेल्फ वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर डैश इंटरनल, उसकी वैल्यू होगी 0.7788 इंटू रेडियस। अब देखो एक कंडक्टर है तुम्हारा ए डैश, एक सर्किट हुआ पूरा, सेकंड है बी डैश और थर्ड है सी डैश, राइट। तो देखो ये सर्किट है आपके पास। सबसे पहले मैं जीएमआर की बात करता हूँ, सेल्फ जीएमडी की। तीन यहाँ पे कंडक्टर है, ए डैश एक सर्किट हुआ, बी डैश सेकंड सर्किट हुआ, सी डैश थर्ड सर्किट हुआ। तो सेल्फ जीएमडी फर्स्ट का ए और ए डैश का बीच का टोटल सेल्फ जीएमडी जिसको बोलते हैं DS1, राइट। डीएस तुम्हारा सेल्फ जीएमडी है, तो DS1 फर्स्ट केस में ए। अब इसमें टोटल चार पोर्शन आएंगे। सबसे पहले ए टू ए, इसके इंटरनल का जो रेडियस आएगा वो, राइट। सिमिलरली ए टू ए डैश, इन दोनों इसका इंटरनल रेडियस आएगा, ए से लेके ए डैश का और ए डैश टू लेके ए तक का, राइट। सो डी ऑफ ए इसका इंटरनल रेडियस आ जाएगा, देन डी ऑफ ए टू ए डैश, इन दोनों के बीच का डी आएगा, देन ए डैश टू ए डैश का खुद का आएगा और फिर ए डैश टू ए।
अब देखो जो वैल्यू ए टू ए की होगी वही वैल्यू बाय डिफॉल्ट ए डैश की होगी। ये दोनों वैल्यू सेम होगी, उनकी खुद की रेडियस आर डैश 0.7788 इंटू आर होगी। जो वैल्यू डी ए डैश की आएगी वही वैल्यू डी ए डैश ए की आएगी, राइट। ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी, सेम, क्योंकि ए से ए डैश की डिस्टेंस और ए डैश टू ए की डिस्टेंस सेम ही होगी। तो 1 2 3 4 पैरामीटर से तो 1/4। सिमिलरली हम निकालेंगे ds2 मतलब बी बी डैश का, तो बी टू बी सेल्फ, देन बी टू बी डैश, देन बी डैश टू बी डैश सेल्फ, देन बी डैश टू बी, सेम जैसे हम लास्ट टाइम करते हैं। इसके खुद का पोर्शन, इसके खुद का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर। सेम काम करेंगे ds3 में, सी डैश में, सी टू सी डैश, सी डैश टू सी डैश और सी डैश टू सी। तो सी की वैल्यू सेम आएगी, वही वैल्यू होगी सी डैश टू सी डैश की। सी डैश की जो वैल्यू होगी वही सी डैश टू सी की वैल्यू होगी, राइट। तो 3 सेल्फ जीएमडी है, तो ओवरऑल ds इज इक्वल टू ds1 इंटू ds2 इंटू ds3 की पावर 1/3, क्योंकि 3 कंपोनेंट है। तो इस टाइप से, इस प्रोसीजर से हमें क्या मिलेगा, सेल्फ जीएमडी मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल जीएमडी की, राइट। अभी तक हमने किया वो ए बी बी डैश सी डैश किया था। अब हम म्यूचुअल करेंगे, एक कंपोनेंट पे, एक कंडक्टर पे दूसरे कंडक्टर का क्या इफेक्ट है। क्लियर। तो देखो ए से बी ये हुआ, बी टू सी ये सेकंड हुआ और सी टू ए थर्ड हुआ, तीनों का अपना अपना हो गया। अब सबसे पहले डी ए बी निकालेंगे, म्यूचुअल जीएमडी बिटवीन ए टू बी। तो देखो ए टू बी, तो ए टू बी 1, देन ए का बी और बी डैश पे क्या आ रहा है और बी का ए और ए डैश पे क्या आ रहा है। आई रिपीट, ए टू बी करना है ना आपको, तो आपके पास दो कंडक्टर है, ए बी इस सर्किट का है, ए डैश बी डैश इस सर्किट का है। ए बी इस सर्किट का है, ए डैश और बी डैश इस सर्किट का है। तो ए का इफेक्ट उसके दोनों अपोजिट कंडक्टर पे कितना है, मतलब बी और बी डैश पे, और ए का इफेक्ट हो गया बी बी डैश पे। तो सिमिलरली ए डैश का इफेक्ट क्या है, बी और बी डैश पे। तो ए का इफेक्ट बी बी डैश में मतलब ए इंटू बी तो डी ए बी, और डी ए टू बी डैश तो डी ए टू बी डैश। फिर ए डैश का इफेक्ट इन दोनों पे क्या है, तो ए डैश टू बी और ए डैश टू बी डैश, तो ए डैश टू बी और ए डैश टू बी डैश, ये म्यूचुअल कहलाता है। समझे। सेम बीसी की बात करते हैं, बीसी, तो बीसी का डबल सर्किट कौन सा है, बी डैश सी डैश, राइट। तो बी का इफेक्ट सी ओ सी डैश पे कितना है और बी डैश का इफेक्ट सी ओ सी डैश पे कितना है। तो बी टू सी डैश, बी डैश टू सी, बी डैश टू सी डैश। क्लियर। तो ये आपको मिलेगा, चार को मल्टीपल करोगे 1/4 करोगे। सिमिलरली सी टू ए, मतलब ए सी का ए डैश और सी डैश पे, तो ए का इफेक्ट किस किस के ऊपर आएगा, ए का इफेक्ट सी पे तो ए इंटू सी, ए का इफेक्ट सी डैश पे तो ए सी डैश, फिर सी का, राइट, सॉरी ए डैश का, तो ए डैश टू सी और ए डैश टू सी डैश, राइट। समझ में कैसे इफेक्ट करना है, काउंट करना है, पावर 1/4। तो ये आपको 3 म्यूचुअल मिले, इन तीनों का आपस में मल्टीपल करोगे तो आपको ओवरऑल डीएम मिलेगा म्यूचुअल, राइट, जिसकी पावर होगी 1/3। तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है आता। अब जस्ट हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूलाज जो अभी तक हमने यूज किए, जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, राइट। सिंगल फेज लाइन, अगर तुम्हें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है पर कंडक्टर पर मीटर, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 × 10⁻⁷ ln dm/ds। डीएम एलएन की यूज करना, एक्सेप्ट आपको लॉग की यूज नहीं करनी है, ये ई पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 × 10⁻⁷ ln dm/ds। डीएम म्यूचुअल जिसकी वैल्यू होगी डी, दो कंडक्टर है यहाँ पे सिंगल फेज लाइन में, तो दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या है, डी है, इसलिए म्यूचुअल कितना है डी। सेल्फ कितना है आर डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.7788, राइट। क्लियर। देन अगर सपोज सिंगल सर्किट 3 फेज लाइन हो, 3 कंडक्टर ट्रायंगल शेप में हो, किसी भी शेप में हो सकते हैं, तीनों की मान लो बीच की स्पेसिंग D1 D2 और D3 हो, तो फॉर्मूला तो यही है, बट डीएम की वैल्यू क्या आएगी तब, D1 × D2 × D3 की पावर 1/3, सेल्फ तो वही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। डबल सर्किट लाइन जो भी हमने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया, dm/ds, डीएम मतलब ए बी सी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, और सेल्फ तो ds1 ds2 ds3, ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। क्लियर है यहाँ तक। आई होप
ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे। मैं बुक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बीके मेथा, जिसके न्यूमेरिकल को हम समझेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, राइट। अ सिंगल फेस लाइन हैज टू पैरेलल कंडक्टर 2 मीटर अपार्ट। एक सिंगल फेस लाइन है, राइट, जिसके अंदर दो पैरेलल कंडक्टर है। एक कंडक्टर के सेंटर से लेके सेकंड कंडक्टर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम डी स्पेसिंग, राइट। वो कितनी है? 2 मीटर। सो द स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 2 मीटर, इसको बोल दिया डी। 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर जो कंडक्टर का है वो तुम्हारा 1.2 है। डायमीटर अगर 1.2 है तो रेडियस क्या होगी इसकी? हाफ। तो 1.2 बाई 2 मतलब 0.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? लूप इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ द लाइन, मतलब एल कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, राइट। 10⁻⁷ 1 + 4 ऑफ ln d अपॉन। ये वैसा का वैसा रहेगा। ln d हमारे पास गिवन है और r भी गिवन है, तो आपको ये मिल गया हेनरी पर मीटर मिल गया। पर क्वेश्चन में तुम्हें पर किलोमीटर निकालना है, तो आप मल्टीपल कर लो किसका? 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है? प्रोसीजर समझ में आ गया आपको, राइट। सेम सेकंड न्यूमेरिकल भी वही है। थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। फाइंड द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग 1.24 सेंटीमीटर डायमीटर कंडक्टर। कंडक्टर का डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है। जब भी डायमीटर गिवन होगा हम वहां से रेडियस निकाल लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? कंडक्टर की रेडियस निकाल ली, r। 1.24 बाई 2 इज इक्वल टू 0.62 सेंटीमीटर। क्लियर? Okay, when these are placed at the corner of triangle of each side 2 मीटर। एक ट्राइंगल गिवन है तुम्हारे पास, राइट। ट्राइंगल के तीन जो डिस्टेंस हमने पहले बताया था, d1 d2 d3, तो तीनों डिस्टेंस सेम है। कितनी है? 2 मीटर है, राइट। कितनी डिस्टेंस है? 2 मीटर है। तो जो कंडक्टर की जो स्पेसिंग है d, वो है हमारे पास 2 मीटर। ओके, अब फॉर्मूला है हमारे पास। तुमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना पूछा है? इंडक्टेंस निकालना है पर किलोमीटर 3 फेज का। फॉर्मूला है हमारे पास इंडक्टेंस का 10⁻⁷। देखो ये है ना 3 कंडक्टर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस t, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? d है। 1 2 3 तीनों कंडक्टर। तो फॉर्मूला है 10⁻⁷ 0.5 + 2 टाइम्स ऑफ ln d अपॉन r। d गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। r 0.62 सेंटीमीटर। तो ये हेनरी आ गया। ये पर मीटर है, हमें किलोमीटर चाहिए, तो मल्टीपल विथ 1000। क्लियर? सिंपल न्यूमेरिकल। चले आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं हम, राइट। 4 न्यूमेरिकल है द 3 कंडक्टर्स ऑफ 3 फेस लाइन आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल इस साइड से, राइट। अब लास्ट न्यूमेरिकल में जो था, यहाँ पे तीनों की स्पेसिंग सेम थी। अब इस न्यूमेरिकल में स्पेसिंग सेम नहीं है। तो कितनी स्पेसिंग है? एक कंडक्टर का जो स्पेसिंग है वो 2 मीटर है। तो जो D12 है, 1 से लेके 2 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर, राइट। 2 से 3 तक का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। 2 से 3 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मीटर। और 3 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर। 3 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर। क्लियर? रेडियस कंडक्टर की है हमारे पास 1.24 सेंटीमीटर, मतलब 0.62 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब देखो तीनों स्पेसिंग अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने कल डिराइव किया था, ये वाला अनसिमेट्रिक स्पेसिंग है, तो d1 इंटू d2 इंटू d3 की पावर 1/3। तो यहाँ पे d12 इंटू d23 इंटू d3 की पावर 1/3। तीनों स्पेसिंग गिवन है 2 2.5 4.5 की पावर 1/3। सॉल्यूशन निकालोगे तो आंसर आएगा 2.82 मीटर, मतलब 282 सेंटीमीटर। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला वही है 10⁻⁷ 0.5 + 2 टाइम्स ऑफ लोगी d इक्वल डिवाइड बाय ln d डिवाइड बाय r। आंसर हेनरी में आएगा। क्वेश्चन में पर किलोमीटर चाहिए, तो इंटू 1000 का मल्टीपल कर दोगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है? लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो कंडक्टर्स के जो डबल सर्किट के जो न्यूमेरिकल्स है हम वो करेंगे। यहाँ पे देखिए
Calculate the inductance of each conductor in three-phase three-wire system when the conductors are arranged in a horizontal plane with a spacing between D31 4 मीटर। तो ये horizontal plane है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कंडक्टर 1 यहाँ पे, कंडक्टर 2 यहाँ पे, कंडक्टर 3 यहाँ पे, तीनों कंडक्टर होरिजेंटल में। D12 की स्पेसिंग कितनी है? 1 से लेकर 2 तक का जो स्पेसिंग है वो 2 मीटर, 2 से 3 का 2 मीटर, तो 1 से 3 का कितना होगा टोटल? 2 + 2 4 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? द कंडक्टर्स आर ट्रांसपोज एंड डायमीटर गिवन 2.5, तो रेडियस निकल जाएगी 1.25। सिमिलरली स्पेसिंग निकालोगे 3 क्यूब D12 D23 इंटू D31, तो तुम्हें ये आंसर आएगा। फॉर्मूला है ही हमारे पास, डी की वैल्यू रखो यहाँ पे 252, रेडियस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो रेडियस आ जाएगा, इंटू 1000 करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? राइट। तो कल की हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डबल सर्किट की टाइप का जो न्यूमेरिकल है उसको हम समझेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, आज हम शाम को जूम पे मिलेंगे वीडियो लेक्चर के कॉन्फ्रेंस के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके।